Yeah. So when he was asking, उसको क्या लगा कि नहीं अभी मैं पूछता हूँ मॉम डैड को कि मुझे ये राउंड अबाउट पे परमिशन दो. But when he asked, he couldn't see any reply. Yeah, he could not listen any reply, and that is when he turns back to ask to see whether his parents are there, but he cannot find his parents. Right? वो पीछे देखता है तो उसको अपने parents दिखते नहीं है. Then he keeps searching here and there. He goes ahead. ये थोड़ा आजू बाजू देखता है. He turned towards on the either side, but he could not find them. There was no sign of them. A full, deep cry rose within his dry throat, and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." ठीक है. And when he could not find him, उसने सब जगह देखा है. जब उसे पता चला कि नहीं आजू बाजू पेरेंट्स नहीं है, a full, deep cry rose within his dry throat, and he started crying loudly. And with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother and father." And जहाँ पे वो खड़ा था वहां से वो तेजी से भाग गया. Why? Because he could not find his parents. So he just started running here and there in search of his parents. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. ठीक है. Tears were rolling down. Why? Because he was continuously crying. Hot and fierce. Hot and fierce is what? कि वो बेचारा डर गया था पूरा. And his flushed face was convulsed with fear. कि उसका जो पूरा face था, it was now converted into fear. के you could see fear on his face. He was very scared, and that is why he was crying here and there. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. ठीक है. कि पैनिक स्ट्राइकन अभी उसको डर लगने लग गया कि मैं यहाँ पे पूरे इतने बड़े फेयर में अटक गया हूँ. So he was running on to one side, then he was searching there for his parents. He could not find them. Then he was running on to the other side, hither and thither. What do you mean by hither and thither? Hither and thither means here and there. Okay, hither and thither means here and there. So he was searching everywhere for his parents, but he could not find one, and he was shouting, "Mother, father." He wailed. What do you mean by wailed? Wailed is cried, that he was crying, "Mother, father." His yellow turban came untied and his clothes became muddy. ठीक है. And उसने क्या, वो जो छोटा बच्चा था उसने क्या पहना था? एक येलो टर्बन. टर्बन इज काइंड ऑफ पगड़ी. एक ऐसे पगड़ी जैसा पहना था. बट सिंस ही वाज रनिंग हियर एंड देयर, वो भी जो पगड़ी थी वो अनटाइड हो गई. अनटाइड मतलब क्या? वो खुल गई. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, एंड पूरा जो क्लोथ्स था वो पूरा मडी हो गया, पूरा धूल मिट्टी वाला हो गया. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. ठीक है. एंड यहाँ वहाँ उसने सब जगह देख लिया था, एंड एक जगह पे वो एकदम डिफीटेड. उसे अभी लगा कि मैं यहाँ पे एकदम हार गया हूँ, अभी मुझे कोई मेरे पेरेंट्स देख नहीं रहे हैं. सो हिज क्राई suppressed into sobs. Sobs मतलब क्या? Cry is basic when he was crying, but sobs मतलब क्या? जोर जोर से रोना. सो नाउ व्हेन ही थॉट कि नहीं अब मैं डिफीट हो गया, I couldn't find anyone, he started crying more loudly. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. And जहाँ पे वो रुक गया एकदम जोर जोर से रो रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी distance पे he could see a men and women talking. So he tried to look intently among the patches of a bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. And उसे लग रहा था कि शायद ये मेरे पेरेंट्स है जो यहाँ बात कर रहे हैं, and वो तुरंत वहाँ पे जाता है. But when he goes there and when he see it wasn't his father and mother, and he thought these people are only there, they are just laughing and talking for the sake of laughing. के खाली बात करने के लिए या फिर हंसने के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हैं वैसे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding. ठीक है. What do you mean by shrine? Shrine is like a
टेम्पल, ठीक है, एक मंदिर जैसा बना था वो फेयर में, वो मेले में, एंड वहां पे वो जाके रुक गया. he seemed to be crowding, ठीक है, where people seem to be crowding, and वहां पे क्या था, सारे लोग जमा हुए थे, बिकॉज टेम्पल जैसा होता है तो सब आए होते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो वहां पे सारे ही लोग जमा हो गए थे. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father, ठीक है. Every little inch of space was congested. What do you mean by congested? मंदिर जैसा था वहां पे, तो सारे ही लोग वहां पे जमा थे, तो पूरा प्लेस congested हो गया था. Congested, it is full of. Okay, congested means it was full of men. But वो he was running through people's leg, के वो धीरे धीरे, छोटा था ना हाइट में, तो लोगों के legs के बीच बीच में से जा रहा था रास्ता बना के, and he was crying, mother and father. His little sob lingering. What do you mean by sob? Sob is, again, as I said, he was crying loudly, and lingering. Lingering is lasting long. के वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के he was crying, mother and father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. ठीक है, एंड क्या हो गया, जब वो एंट्रेंस पे पहुंचा टेम्पल के, तो वहां पे तो क्राउड और भी ज्यादा था. वेरी थिक मतलब क्या, और भी ज्यादा था. Men jostled each other. What do you mean by jostled? Jostled is पुश्ड ईच अदर, के जो आजू बाजू के लोग थे वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे, ऐसे कोन ही मार रहे थे, एंड सब पूरा क्राउडेड था. हेवी मैन विथ फ्लैशिंग murderous eyes and hefty shoulders. Okay, they were huge mans. So you know, flashing is एक ऐसे डर जैसा उसको लग रहा था, उनके आईज कैसे उसे लग रहे थे, एकदम डरावने. murderous eyes and hefty shoulders, they were huge, right? They had huge body. So the poor child, he was struggling to thrust. Okay, स्ट्रगलिंग टू थ्रस्ट मतलब क्या, थ्रस्ट इज पुश करना. तो इतने हेवी हेवी लोग थे ना कि अभी उसे उसे उनको पुश करने को भी जम नहीं रहा था. जो चाइल्ड था, ही वाज स्ट्रगलिंग टू पुश दैट पर्सन अवे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. ओके, एंड टू एंड फ्रो मतलब क्या, कि वो भी यहाँ वहां हो गया जब उन्होंने उसको धक्का दिया. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. And वो चिल्ला रहा था, इसीलिए वो बच गया. See, he might have been trampled underfoot. What do you mean by trample? Trample is crush, के वो इन लोगों के पाँव के नीचे आ जाता था, वैसा trampled is underfoot. सी, ट्रैम्पल इज क्रश, कि अगर वो इतने जोर से नहीं चिल्लाता फादर मदर, तो सच में वो उनके पाँव के नीचे आ जाता है. ऐसे एड ही हैड नॉट श्रीक्ड. श्रीक मतलब क्या, श्रीक ओवर हियर मींस दैट ही वाज शाउटिंग दैट ह्यूज, दैट सिंस उसने इसे चिल्लाया तभी वो बच गया. वैसे a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. ठीक है, एंड फिर ये जब चिल्ला रहा था फादर मदर, तो एक अंकल थे, उन्होंने सुन लिया उसको, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी. स्टूपिंग ओवर हियर मींस दैट ही वाज ट्राइंग हिज हार्ड टू हेल्प दैट किड. So stooping over here with great difficulty, he lifted up in his arm, and उसने क्या किया, वो child को अपने arms में उठा लिया. And फिर he started asking questions that how did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he stirred clear of the mass. Okay, as he stirred clear of the mass मतलब क्या, mass is people, and stirred over here means कि वो रास्ता बना बना के बाहर के साइड आ रहा था. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. And वो अंकल उसे पूछ रहे थे कि आप किसके बेबी हो, how are you here? But वो बच्चा कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहा था. He was just crying, asking for his mother and father. Is it clear यहाँ तक? Yeah, Daksh, it is okay. You Yes, can. ma'am. Okay.
The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. तभी वो जो मैन था उसने क्या किया, उसको सूथ किया. सूथ मतलब क्या, उसे लगा ये बच्चा इतना रो रहा है, तो उसको कंफर्ट करने के लिए वो अंकल उसको कहाँ पे लेके गए, टू द राउंड अबाउट, जहाँ पे उसको बैठना था, वो जो हॉरिजेंटल झूला जिसकी हम बात कर रहे थे वो. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. And वो बच्चे को लेके वो कहाँ पे गए, हॉर्स राइडिंग के पास गए. एंड उन्होंने उनको पूछा कि आपको हॉर्स राइडिंग करनी है यहाँ पे. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs as he only shouted, I want my mother, I want my father. बट जैसे उन्होंने उसको पूछा, the child's throat tore into 1,000 shrieks. शील्स मतलब क्या, श्रील सोप्स मतलब क्या, कि वो अगेन और जोर से उतना रोने लगा, दैट नो आई जस्ट वांट माय मदर एंड फादर. The men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. And फिर हॉर्स राइडिंग के लिए तो बच्चा ने मना कर दिया, तो वो उसको किसके पास लेके गए, स्नेक चार्मर के पास लेके गए. एंड इफ यू रिमेम्बर, पहले उसको वो स्नेक चार्मर का गाना सुनना था, बट उसे लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने बोला है ऐसी आवाज, अनप्लीजेंट आवाज आपको नहीं सुननी चाहिए, एंड वो वहां से चला गया था. तभी वो उसको स्नेक चार्मर के पास लेके आए एंड उसको बोला, listen to that nice music child, he pleaded. और उसने उनको रिक्वेस्ट किया, pleaded is रिक्वेस्ट करना, कि ये आवाज सुनो, you would like it. But the child shut his ears with his finger and again shouted his double pitch strain, कि जो उसकी नॉर्मल वॉइस थी उससे और जोर से वो डबल वॉइस में चिल्लाने लगा, that no, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. अब जो बलून जो उसको लास्ट टाइम चाहिए थे, पर उसे लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे, अब वो अंकल उसे वो बलून वाले के पास लेके आए एंड उसको बोला, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम. उन्हें लगा कि ये बलून को देख के मे बी ये बच्चा रोना बंद कर दे, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड शायद ये मुझे, मेरे पे मतलब ध्यान देने लगे, फिर मुझे बताए कि क्या हुआ, वो कैसे गुम हो गया. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, जो उसको पहले चाहिए था. रिमेम्बर, पहले उसको एक रेनबो कलर बलून चाहिए था, बट उसने क्या सोचा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे, इसीलिए उसने वो बलून नहीं मांगा था. तो ये अंकल उससे वही बलून दिला रहे थे. ही पर्सुअसली आस्क्ड, पर्सुअसली मतलब क्या बच्चा, कन्विंसिंग मैनर, के वो एकदम ऐसे वो कन्विंस हो जाए बच्चा, उस वे में उसे बोल रहे थे. द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सोब्ड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. बट वो बलून की तरफ भी उसने नहीं देखा छोटे चाइल्ड ने, एंड वो सिर्फ रोने लगा, दैट नो, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अभी पता है, फर्स्ट उसने कौन सा शॉप देखा था, स्वीट्स का शॉप, एंड दूसरा कौन सा था, फ्लावर सेलर का शॉप, एंड उसे वो फ्लावर की माला अच्छी लगी थी, तो वो अंकल अभी उसे वहीं पे लेके जाते हैं. दैट लुक, कैन यू स्मेल दोस थिक फ्लावर्स चाइल्ड, those nice flowers child, would you like a garland to put round your neck. तो वही हो रहा है, जो उसे पहले वो गार्लैंड चाहिए था, वही अभी अंकल उसे वापस दिला रहे हैं. बट व्हाट इज द किड सेइंग, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम दैट बास्केट एंड reiterated his sob, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. बट उसने वो बास्केट की तरफ, वो फ्लावर्स जो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, उसके तरफ नहीं देखा, एंड वो एक ही चीज बोल रहा था, दैट नो, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई father. Thinking to humor is disconsolate child by a gift of sweets. ठीक है, तो उसको क्या, वो जो अंकल थे उन्हें क्या लगा कि ये बच्चे को डिसकंसोलेट, डिसकंसोलेट मतलब क्या, कि वो तो कंफर्ट हो नहीं रहा है, राइट, वो उसे कंफर्ट करना चाह रहे थे बलून्स दिला के, फ्लावर्स दिला के, या वो स्नेक जो सफेरा था वो दिखा के, बट ये बच्चा तो कंफर्ट हो ही नहीं रहा था. तो इन्हें लगा क्यों ना मैं इसे कुछ स्वीट्स खिलाऊं, तो शायद स्वीट्स को देख के ये थोड़ा उसका मन हल्का हो जाए. सो ही डिसकंसोलेट. सो व्हाट यू मीन बाय डिसकंसोलेट, unable to comfort. Since he was not able to comfort that kid, he thought, why not I would give him a
gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop, and वो उसको कहाँ पे लेके गए? Sweet shop के counter पे लेके गए. What sweets would you like, my child? He asked. कि आपको कौन सी स्वीट खानी है? And if you remember, पहले उसको क्या खाने का मन हुआ था? उसकी कौन सी फेवरेट स्वीट यहाँ पे बताई गई थी? आंसर पार्थ, कौन सा स्वीट था यहाँ पे पहले जो उसको ऊपर मन हो रहा था खाने का? यस मैम। Which was the sweet which the child wanted to hit? यहाँ पे हम लोग ने देखा उसका फेवरेट स्वीट कौन सा मेंशन्ड है? मैम रसगुल्ला। रसगुल्ला। ध्यान ही मत दो आप, ठीक है? रसगुल्ला बताया यहाँ पे उसका फेवरेट स्वीट। मैम वो काजू कतरी वो। हाँ, सब स्वीट का नाम ले लो, काजू कतरी। यहाँ पे देखो, I want that बर्फी. The child stared open eye, has his mouth water for the बर्फी, which was his favorite sweet. समझा? बर्फी था, काजू कतरी, रसगुल्ला सब बोल दिया। ध्यान दो बच्चा, ध्यान दो। So thinking to humor, yeah. So वो शॉप वो अंकल क्या बोलते हैं उसे? That which sweet would you like, my child? तभी उसे पहले हमने देखा उसे बर्फी खानी थी, but उसे क्या लगता है that no, my parents would say me, they would reject this. That is why he doesn't ask. तो यहाँ पे उसको चाहिए था तो वो बर्फी खा सकता था, वो बर्फी अंकल को बोल सकता था कि मुझे बर्फी दे दो. But the child turned his face from the sweet shop and only sobbed. But वो बच्चा क्या रो रहा था? उसने sweets को भी मना कर दिया and वो क्या बोल रहा था? That no, I want my mother, I want my father. And this is how we come towards the end of our chapter. ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. अब आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो कैसा इनकम्प्लीट है, क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को आके मिला, क्या उसे अपने पेरेंट्स मिलते हैं, ये सब चीज तो यहाँ पे बताई नहीं है. बट यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस बताया गया है. मतलब मैम मदर फादर ज्यादा जरूरी है, चीजें नहीं. या उसको पहले क्या लग रहा था? उसे लगता था कि मैं कुछ भी मांगूंगा मेरे जो पेरेंट्स है वो मना कर देंगे, बिकॉज एट पॉइंट बच्चा यू आर चाइल्ड, सो यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट? व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट आंसरिंग योर क्वेरीज और दे आर रिजेक्टिंग यू, इट मे बी एनी रीजन, राइट? इट इज नॉट लाइक दे डोंट लाइक इट, मे बी इट कैन बी अ फाइनेंशियल इशू या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वो मना करते हैं. बट आप तब छोटे होते हो, तब आपको समझता नहीं, बट एट अ पॉइंट व्हेन यू बिकम mature, you try to understand that okay, this was the certain thing, इसीलिए वो हमें मना करते हैं, right? So यहाँ पे भी वही बताया कि उसको स्टार्टिंग what are you doing, Parth? Mute yourself. Yeah. उसको स्टार्टिंग में बर्फी अच्छी लगती है तो वो बर्फी का उसको विश होता है, बट उसे लगता है नो, मेरे पेरेंट्स मना कर देंगे. फिर फ्लावर के शॉप में आता है तो गार्लैंड होता है, गार्लैंड भी वो नहीं मांगता है. फिर वो सफेरे वाले अंकल के पास आता है, बट उसे लगता है कि ये वॉइस तो पेरेंट्स ने ना बोली है सुनने के लिए. एंड देन वो राउंड अबाउट में आता है, राउंड अबाउट में उसे पता चलता है कि नहीं, वो वहां पे घूम गया है. बट यहाँ पे क्या बताया? दैट आफ्टर ही रियलाइज कि यार मेरे पेरेंट्स घूम गए हैं, मैं मेरे पेरेंट्स सॉरी नॉट मेरे पेरेंट्स घूम गए, मैं घूम गया हूँ, तो तब उसे रियलाइज होता है दैट नो, नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन माई पेरेंट्स. राइट नाउ ही रियलाइजेस दैट आई वॉन्ट माई पेरेंट. दैट अंकल जो जो उसे चाहिए था वो सारी चीजें उसे दिलाते हैं, बट नो, वॉट ही इज आस्किंग फॉर, he's asking for his parents. So that is when he realizes that no relation is more important than one he's sharing with his parents. Is it clear yahan tak? यस मैम. Yeah, so यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा था? A child goes to a fair with his parents. He's very happy and excited and wants the sweets and toy which are displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? चलो इसका आंसर बताओ. Why then does he refuse जब कोई और उसे ऑफर कर रहा है तब? तो इसका आंसर क्या है? मैम क्योंकि तभी उसके पेरेंट्स चले गए जो उसको ज्यादा जरूरी था. Yeah, because उससे ज्यादा जरूरी उसको टॉयस वगैरह कुछ भी नहीं थे. पेरेंट्स उसको उन सब से भी ज्यादा जरूरी था.
perfect, because at that point he realizes that he has been lost, and he wants the one thing which he wants right now is his parents. And no one